Hello students, today we will discuss the blueprint of class 3 to 5 of periodic 1 exams. Your periodic 1 exams is of 50 marks. These are the type of question and marks. MCQ multiple choice question, 5 question 1 mark each. Fill-ups 5 question 1 mark each. True false 5 question 1 mark each. Match the following 5 question 1 mark each. Define 2 mark each. Very short question answer 6 question answer very short 1 mark each. 3 short question answer 2 marks each. Long question answers 2 3 mark each. Quotes 1 of 3 marks. Diagram 1 of 5 marks. So this whole sum up into 50 marks. So you have to prepare for exam according to this blueprint. Whenever you will make your new notebook, write down this blueprint in your new notebook. Let's come to the syllabus. So students, class 3 syllabus. In your syllabus there is only 4 chapter in periodic 1, that is chapter 1 classifying things, chapter 2 living and non-living things, chapter 3 plants, chapter 4 animals. The definition which will come is classification and characteristics from chapter 1, sense organs, reproduction from chapter 2, climbers and creepers from chapter 3, herbivorous, carnivorous and omnivorous from chapter 4. If I'll talk about the diagram, things made of wood and plastic. You have to draw only 2 to 3 things made of wood and plastic in the exam. So try to do this, make diagram in your notebook. Living and non-living things from chapter 2, few living and few non-living, parts of plant from chapter 3. So you have, this is your syllabus of periodic 1 exam. We will complete this syllabus and then one by one we will discuss the book exercise. So let's come to the book exercise of chapter 2, that is living and non-living things. So students, this is the chapter 2 of class 3, that is living and non-living things. The two definition of this chapter is sense organs and reproduction. Let's discuss these two definitions. First one is sense organs. The part of our body that we use to see, hear, smell, taste or feel things are called sense organs. बेटा सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? हमारे बॉडी के वो पार्ट जिनको हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को देखने के लिए, सुनने के लिए, स्मेल करने के लिए, टेस्ट करने के लिए या फील करने के लिए. और ये सब चीज़ें हम किससे करते हैं? ईयर, आइज़, नोज़, टंग, स्किन. तो ये हमारे क्या हुए? सेंस organs. So it is a very easy define the part of our body that we use to see, hear, smell, taste or feel things are called sense organs. Next define is reproduction. The process of producing young ones of the same kind is called reproduction. अपने ही जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन. अगेन लिसन केयरफुली. द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. क्या कहेंगे हम इसको? रिप्रोडक्शन. सो these two define is your homework for tomorrow's weekly test. You have to learn these two define for tomorrow's weekly test, that is on 14 April. Now come to the book exercise. Students, I have shared a PDF and also a video on the YouTube channel of the book exercise of these questions, book exercise of chapter 2. So you will see the question in that video and you will see the answers in this video.
I will speak question for you. So tick the correct option. First question is arranging things. So student, first question is which of the following is a living thing. पहला क्वेश्चन है, उसमें आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि कौन सी चीज़ लिविंग थिंग होती है. फर्स्ट ऑप्शन है टॉय. टॉय लिविंग होता है? नहीं, क्योंकि वो ना मूव कर सकता है ना ग्रो कर सकता है. नेक्स्ट ऑप्शन है कैट. थर्ड ऑप्शन है टेबल और फोर्थ ऑप्शन है पेंसिल. तो करेक्ट ऑप्शन इज कैट, क्योंकि कैट ग्रो कर सकती है, रिप्रोड्यूस कर सकती है, वॉक कर सकती है, मूव कर सकती है, लेकिन टॉय, टेबल और पेंसिल मूव नहीं कर सकते. इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कैट. सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड एयर, वाटर एंड फूड टू लाइफ. किस चीज़ को, इन 4 में से किस चीज़ को एयर, वाटर और फूड की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए. ऑप्शंस हैं आपके पेन, प्लांट्स, पेपर, स्केल. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? प्लांट, क्योंकि प्लांट ही खाना खा सकता है, एयर ट्रैप कर सकता है, फूड ले सकता है, वाटर का यूज़ कर सकता है, लेकिन पेन, पेपर और स्केल यूज़ नहीं कर सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ डैश कैन मूव इट्स ऑन इट्स ओन. अपने आप कौन सी चीज़ें चल सकती हैं? टीवी चल सकता है? नो. डोंकी? यस. बॉटल? नो. डेस्क? नो. तो स्टूडेंट्स, डोंकी कैन मूव ऑन इट्स ओन, अपने आप डोंकी चल सकता है, बाकी टीवी, बॉटल और डेस्क नहीं चल सकते. तो ये थे आपके टिक द करेक्ट ऑप्शन ऑफ चैप्टर 2, दैट इज़ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. नाउ कम टू द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इज लिस्ट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं. तो आंसर क्या होगा? द करेक्टरिस्टिक्स आर, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? लिविंग थिंग कैन ब्रीथ, ग्रो, मूव, रिप्रोड्यूस. लिविंग थिंग्स क्या क्या कर सकती हैं? ग्रो कर सकती हैं, ब्रीथ कर सकती हैं, रिप्रोड्यूस कर सकती हैं और मूव कर सकती हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस. इन्होंने हमें सेंटेंस दिए हुए हैं, हमें उनको करेक्ट करना है, ठीक करना है. फर्स्ट सेंटेंस है आपका, एनिमल विच डू नॉट हैव लेग्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ. जिनके पैर नहीं होते वो अपने आप नहीं चल सकते. क्या करेक्ट स्टेटमेंट है? नो. एनिमल विच डू नॉट हैव लेग्स कैन ऑल्सो मूव बाय देमसेल्फ. जिनके लेग्स नहीं होते वो भी अपने आप चलते हैं, जैसे कि स्नेक है, वो अपने स्केल्स की मदद से चलता है. नेक्स्ट है प्लांट्स डू नॉट हैव माउथ सो दे कैन नॉट ईट. जिनका माउथ नहीं होता वो खा नहीं सकते, देयरफॉर दे डू नॉट नीड फूड. तो उनको फूड की ज़रूरत नहीं होती. प्लांट्स डू नॉट हैव माउथ बट दे नीड फूड. ऐसा नहीं है कि प्लांट के पास माउथ नहीं तो खाना नहीं खाते, उनको भी ज़रूरत होती है. नेक्स्ट, काउ डू नॉट ले एग लाइक हैन, सो काउ डू नॉट रिप्रोड्यूस. अगर काउ एग नहीं देती तो वो रिप्रोड्यूस भी नहीं करती. नो, इट इज़ रॉन्ग. काउ डू नॉट ले एग लाइक हैन बट दे रिप्रोड्यूस, लेकिन वो रिप्रोड्यूस करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू एप्पल प्लांट जर्मिनेट. एप्पल प्लांट कैसे जर्मिनेट करता है? एप्पल प्लांट जर्मिनेट व्हेन देयर सीड्स आर सोन इन द सॉइल एंड गेट एयर एंड वाटर. एप्पल प्लांट कैसे जर्मिनेट करता है? जब हम उसके बीज को सॉइल में बो देते हैं और सफिशिएंट उसको एयर, वाटर सब चीज़ें मिलती हैं तो वो क्या कर जाता है? वहाँ पर जर्मिनेट कर जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू द सनफ्लावर व्हेन द सन इज़ इन द वेस्ट. जब सन वेस्ट में होगा तो सनफ्लावर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? द सनफ्लावर बेंड टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द सन. सनफ्लावर भी कहाँ बेंड हो जाएगा? उसकी डायरेक्शंस में. सो स्टूडेंट, फिफ्थ क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन इज लुक एट द पिक्चर. एक पिक्चर दी हुई है, उसमें आपको 6 मंथ के, 2 ईयर, 4 ईयर, 12 ईयर, 25 ईयर तक के ओल्ड बच्चों की हाइट क्या मेंशन की हुई है. तो उसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द गिवन डाटा टेल्स अबाउट ह्यूमन बीइंग. जो गिवन डाटा है वो क्या बताता है? वो क्या बताता है? दैट ऑल ह्यूमन बीइंग ग्रो, कि सारे ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? ग्रो करते हैं. पहले छोटे होते हैं, फिर बड़े, ऐसे उनकी हाइट बढ़ती रहती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द डाटा गिवन. जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम हाइट ह्यूमन बीइंग की क्या है और वो किस एज में होती है. तो जो डाटा आप देखोगे, जब आप वीडियो देखोगे तो उसमें जो डाटा दिया हुआ है उसमें मैक्सिमम हाइट क्या है? 170 है सेंटीमीटर 25 ईयर्स में. तो यही हमारा आंसर है. द मैक्सिमम हाइट इज 170 सेंटीमीटर एट द एज ऑफ 25 ईयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द बेबी नीड टू ग्रो
एंड स्टे अलाइव। किसी भी बच्चे को जीने के लिए क्या चाहिए? फूड, एयर, वाटर। क्या चाहिए? फूड, एयर, water. The baby needs food, air, water to grow and stay alive. Next question is, what are the other changes which would be observed in human beings over the year beside height? Height के beside और क्या क्या changes होते हैं? The height of the human being increases at a certain point only. Height तो एक certain point तक बढ़ती है, लेकिन जो weight और appearance है वो हमेशा ही change होती रहती है. So this is the fifth question of short question answers. Now come to the long question answers. फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सेज दैट अ पॉटेड प्लांट एंड अ गार्लैंड बोथ हैव फ्लावर। आपने देखा एक प्लांट होता है उसमें फ्लावर होते हैं, और एक गार्लैंड जो माला होती है उसमें भी होते हैं फ्लावर। तो उसने कहा है कि सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और डिफरेंसेस क्या हैं, दो दो बताने हैं। तो बेटा दोनों ही प्लांट क्या है, दोनों ही प्लांट के पास क्या है? फ्लावर है। ठीक है, तो ये तो इसकी सिमिलैरिटी होगी, बोथ हैव फ्लावर्स। अब डिफरेंस क्या है कि जो पोटेड प्लांट है वो एक लिविंग थिंग है, क्योंकि वो क्या है, अभी भी सॉइल से अटैच है, वो ब्रीथ कर रहा है, ग्रो कर रहा है। लेकिन जो गार्लैंड है वो नॉन लिविंग है, क्योंकि हमने फूलों को तोड़ लिया और तब वो बनाई है, तो इसलिए वो क्या है? नॉन लिविंग। तो फ्लावर ऑन पोटेड प्लांट इज लिविंग, अलाइव, एंड फ्लावर इन द गार्लैंड इज नॉन अलाइव। वो क्या है? नॉन अलाइव है, जीवित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, दो पिक्चर्स दी हुई हैं। एक आपकी क्या है? पीजन की और फ्लावर की, रोज़ प्लांट की। आपको सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस बताने हैं उसमें। तो सिमिलैरिटीज़ क्या है? बोथ कैन ग्रो एंड ब्रीथ। पीजन और रोज़ दोनों ब्रीथ कर सकते, ग्रो कर सकते, दोनों को ही फूड चाहिए, वाटर चाहिए, शेल्टर चाहिए, एयर चाहिए। तो बोथ कैन ग्रो एंड ब्रीथ, बोथ नीड फूड, वाटर एंड एयर एंड शेल्टर। ये थी सिमिलैरिटीज़। अब डिफरेंसेस क्या है? पीजन कैन मूव बट रोज़ प्लांट कैन नॉट मूव। पीजन तोड़ सकता है, मूव कर सकता है, लेकिन रोज़ प्लांट मूव नहीं कर सकता। पीजन रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग। पीजन क्या देता है? एग, एग ले करता है। और रोज़ प्लांट रिप्रोड्यूस बाय सीड। और रोज़ प्लांट किससे रिप्रोड्यूस करता है? सीड से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिज्ञासा ऑब्जर्व दैट अ डिफ्लेटेड बॉल फुटबॉल इंक्रीज इन साइज व्हेन एयर इज फिल्ड। क्वेश्चन है कि जिज्ञासा ने देखा कि एक बॉल थी जिसमें एयर नहीं थी। जब हमने एयर फिल की तो वो क्या, एयर उसके अंदर फिल हो गई और उसका साइज़ बढ़ गया। तो वो भी एक लिविंग थिंग है, वो ग्रो कर रही है। इज शी करेक्ट? क्या वो करेक्ट है? नो बेटा, फुटबॉल एक नॉन लिविंग थिंग है। अगर हम उसका साइज़ क्या हो रहा है, हमारे ऊपर डिपेंड हो रहा है। अगर हम उसमें एयर फिल करते हैं तो साइज़ बढ़ जाएगा, और एयर निकाल देते हैं तो साइज़ कम हो जाएगा। तो नो, शी इज़ नॉट करेक्ट, वो करेक्ट नहीं है, बिकॉज फुटबॉल इज़ ए नॉन लिविंग थिंग। फुटबॉल एक नॉन लिविंग थिंग है। इट डज़ नॉट नीड फूड, सो इट कैन नॉट ग्रो। अगर उसको फूड ही नहीं चाहिए तो वो ग्रो ही नहीं करेगी। तो ये एक बिल्कुल गलत बात है। ये एक नॉन लिविंग थिंग है जो कि ग्रो नहीं करती। So next question is hot question. Listen it to very carefully. Jigyasa has put a caterpillar, a fruit fly, a potted plant and a dish of water in the glass. आप देखेंगे, जब आप बुक में देखेंगे, बुक की PDF में, कि ग्लास का टैंक है, उसमें एक स्मॉल सा होल किया हुआ है, और जिज्ञासा ने कैटरपिलर, फ्रूट फ्लाई, पोटेड प्लांट, इन सबको उसमें डाल दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू अ पोटेड प्लांट, अ कैटरपिलर एंड फ्रूट फ्लाई नीड टू स्टे अलाइव। इन सबको जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिएगा? सबसे पहले एयर चाहिए, वाटर चाहिए और सनलाइट चाहिए। इन तीनों चीज़ को चाहिए उनको अपने ज़िंदा रहने के लिए। नेक्स्ट है, वेयर शुड द ग्लास टैंक बी प्लेस्ड। ग्लास टैंक को कहाँ रखना चाहिए ताकि ये सब आसानी से जी सके? द ग्लास टैंक शुड बी प्लेस्ड वेयर सनलाइट इज़ प्रेजेंट। वहाँ रखो जहाँ पर क्या हो? सनलाइट हो। नेक्स्ट है आपका, वुड ऑल द लिविंग थिंग्स इनसाइड द ग्लास टैंक बी अलाइव आफ्टर 1 वीक। अगर हम उसको ऐसे ही धूप में रखेंगे, एयर वाटर सनलाइट देते रहेंगे, तो क्या सारी चीज़ें ज़िंदा रहेंगी? यस, सारी चीज़ें रहेंगी। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन इफ़ स्मॉल होल इज़ कवर्ड विद। अगर जो छोटा सा होल है उसमें कह रहा है कि अगर वो उसको मैं थिन क्लॉथ के साथ कवर कर दूँ, पतले से कपड़े के साथ जिसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो क्या होगा? नो चेंज विल हैपन। कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसमें से एयर और लाइट तो जाती रहेगी, पेनिट्रेट करती रहेगी, तो वो जिंदा रहेंगे। नो चेंज विल हैपन एज एयर एंड लाइट विल बी एबल टू पेनिट्रेट थ्रू द होल। होल से एयर और लाइट पेनिट्रेट करती रहेगी, इसीलिए कोई इफेक्ट नहीं होगा। और बी पार्ट में क्या कह रहे हैं कि अगर मैं ग्लास शीट से ढक दूँ, ग्लास की शीट से तो कुछ भी आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो क्या हो जाएगी? सारी चीज़ें मर जाएंगी। ऑल लिविंग थिंग इनसाइड द ग्लास टैंक वुड डाई। सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? बिल्कुल डेड हो जाएंगी, मर जाएंगी। तो ये था आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। लॉन्ग टिक द करेक्ट। नाउ कम टू द डायग्राम। आपको कौन सा डायग्राम बनाना है?
आपको बनानी है कुछ लिविंग थिंग्स और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स अपनी नोटबुक में। तो ये आपकी एक्सप्लेनेशन थी चैप्टर 2 बुक एक्सरसाइज ऑफ क्लास 3 दैट इज़ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, tomorrow's weekly test homework is to learn the definition of this chapter, that is sense organ and reproduction. And when you will make your new notebook, do this whole work in your new notebook.